अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि थाना लोहारी की हदूद में एक नौजवान को कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल करने की कोई बड़ी वजह नहीं होती है। सिर्फ 1000 रुपये की खातिर उस नौजवान को कातिल गोलियां मार के कत्ल कर देता है और कत्ल करने से पहले उसको ये कहता है कि तुम मुर्गा बनो, तुम कान पकड़ो, अगर तुम कान नहीं पकड़ोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मकतूल जो है उसके साथ इस बात पे बहस करता है कि तुम्हारा मेरा झगड़ा किसी बात पे नहीं है, 1000 रुपया तुमने लेना है वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन ये वाकया है क्या, कत्ल होता क्यों है, लवाहिकीन क्या कहते हैं और पुलिस क्या कहती है, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। 27 से 28 साल शुएब जिसे कत्ल किया जाता है, उसके वालिद, भाई और दीगर रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि कत्ल की वजह क्या थी, क्यों कत्ल किया गया। मेहनत मजदूरी करने वाला नौजवान था और नौबत यहाँ तक कैसे और क्यों पहुँची। बड़ा अफसोस होया जी, की होया दसो जरा जी। उत्थे काम करदा सी बच्चा साडा, किहड़ी जगह ते? मोती बाजार च। ठीक है। ते हाँ, शीशा मोती बाजार। उत्थे मालक नाल किसे दी लड़ाई हो पई, पैसिਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ कितने पैसे का लेन देन? 1000 रुपये ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ। 1000 रुपये ਦਾ? 1000 रुपये ਦਾ ਸਿਰਫ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ। अच्छा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਾਤਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਆਸਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, वाकया होया किस तरह? 1000 रुपया इकट्ठे काम करते सी, कातिल सी कौन? ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ठीक है। कादा काम करदा सी? ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। जुत्तियां बनाता? हाँ जी। मुलजम भी जुत्तियां बनाता? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। अच्छा। ਉਹ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ। अच्छा। ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ठीक। ਉਹਨੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਗਿਰੇਵਾਨ ਫੜ ਲਿਆ, ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ठीक है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਏ। हाँ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾਂਗਾ। हाँ हाँ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। अच्छा, तो फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ? ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਜਰਮ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ ਘਰ ਦਾ। ठीक है। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਹੀ ਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਨੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਫੈਰਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਨੱਸੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ठीक है। ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਨੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। अच्छा, तो ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਫੈਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਡਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫੈਰ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ? 2 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ? ਇੱਕ ਪੇਟ 'ਚ ਵੱਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਖੀ 'ਚ ਵੱਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ? ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਐਵੇਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਲੈ ਥਾਣੇ? ਗਈ ਥਾਣੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੜਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਸਤੇ? 1000 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? 27 ਸਾਲ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ? ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਹਾਲੇ। ਕੋਈ ਮੰਗਣੀ ਵਗੈਰਾ? ਜੀ, ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੈਸਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਸੀ? ਫਰਮਾਂ ਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ 18-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ? ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਦੀ 30,000 40,000 ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਮਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਬਸ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਦਿਮਾਗ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਸ਼ਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਆਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿੱਚ- ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਹੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ अच्छा ਦਿਨ। अच्छा, फिर हो गया सी। अच्छा, माइक जो भाई नु, भाई ज़रा आप बताएंगे असल क्या हुआ? भाई आपका 27-28 साल का था, आपसे बड़ा था? हाँ जी, मेरे से एक बड़ा भाई और है, फिर उसके बाद उसका नंबर आता। ठीक है। तो उधर मार्केट में काम करते थे इकट्ठे। ये काम छोड़ गया था बीच में काम छोड़ के गया, उसके बाद मार्केट में आया, मालिक के साथ लेन देन था, मालिक के साथ उसने बादशाह की है, लड़ाई झगड़ा क्या, हो किस गया। बात का लेन देन था? वो काम करता था, जाहिर सी बात है उसके पैसे उधर बनते ही हाँ, होंगे। वो तो तो- और पैसे भी बहुत थोड़े से थे। उन भाई के साथ तो 1000 का लेन देन था, मालिक के साथ कुछ होगा उसका लेन ठीक है, देन। लेकिन उसके साथ, भाई के साथ तो कोई भाई के ताल्लुक? साथ 1000 ही था। उसके बाद लड़ाई झगड़ा हुआ मालिक के साथ। ये भाई मालिक की फेवर में बोला कि भाई यार तू इस तरह ना कर, इस तरह आराम ना बैठ के गल कर ले। हाँ, तो उसी दौरान हाथापाई हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया काफ़ी। अच्छा, तो जाती दफ़ा कह के गया कि अपना बंदोबस्त करके रखी, मैं तेनों मिलना ही। ठीक है, धमकी लगाई उसने? धमकी लगा के गया काफ़ी। ठीक है, भाई कहता ठीक है जल जा, जो आएगा वेखी जाएगी। ठीक है। कह के चला गया भाईजान। उसके बाद फिर अगले दिन खाना खाने के लिए निकला बाहर। उससे वेरी नेक्स्ट डे? बुध वाले दिन झगड़ा हुआ, जुमेरात को, अच्छा। जुमेरात वाले दिन 4:15 4:30 के दरमियान ना खाना खाने आया बाहर। खाना खाने आया बाहर तो देखा जी वो आ रहा है उधर से, तो भाई खड़ा हो गया उधर। वो कहता जी कान पकड़ो उधर। भाई कहता नहीं कान नहीं फड़ना मैं, कान नहीं फड़ने में, हाँ, तो इस तरह ही गल कर जेड़ी करनी है। हाँ। वो थोड़ा सा उधर मुँह मारी हुई है तो उधर ही फायर उसने लगा दी। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? गिरफ्तार मुलजिम कैसे हुआ? गिरफ्तार ऐसे हुआ कि फायर लगा कर मार्केट से फरार हो रहा था। तो 2 मुहाफ़िज़ से उधर, तो वो भाग रहा था भाई जिसने कत्ल किया, तो वो मुहाफ़िज़ ने उधर ही गिरफ्तार कर लिया। हाँ, तो फिर थाने ले गए उसे। फिर थाने ले गए। तो वहाँ पे फिर आप मुझे बताएंगे पुलिस कितनी मदद कर रही है? आपको लगता है पुलिस- आपको कि इंसाफ नहीं, मिल नहीं, जाएगा? उन्होंने हमारे साथ बड़ा अच्छा ताउन किया, हर लिहाज से, हर चीज़ से। कोई उन्होंने ये नहीं कहा भाई ये लेके आओ, इधर जाओ, फलान करो, सारा कुछ उन्होंने खुद ही किया। सारा कुछ उन्होंने खुद ही किया। और ये खुशकिस्मती है जी इसकी मकतूल के लवाकिन की, वरना पुलिस जो है वो मुलजमान गिरफ़्तार करने में काफ़ी अरसा लगा देती है। और जब इसने ये कत्ल की वारदात की तो फौरी तौर पे वहाँ पे मौके पे मौजूद जो पुलिस वाले थे, मुतलका पुलिस एहलकार थे, उन्होंने उसको असले समेत, जो आला कत्ल था उसके समेत जो है वहाँ से मौके से गिरफ़्तार कर लिया। जो जाने वाला था यकीनन वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन जो उसके साथ जुल्म करने वाला था, जो उसको कत्ल करने वाला था, उसको गिरफ़्तार कर लिया। और यकीनन पुलिस कानून के मुताबिक उसको सज़ा दिलवाने की कोशिश भी करेगी। अच्छा भाई, ये बताएं कि भाई के साथ बड़े एक दूसरे के वो बाजू होते हैं भाई, ऐसे ही है। तो कैसा रिश्ता था, कितनी दोस्ती थी? बस जाने के बाद कमी तो महसूस होती है, काफ़ी मेल जोल था, बैठ के हंसा मजाक करना, घर आना, खाना शाना खाना, गप्पे शप्पे लगाना। कमी तो जाहिर सी बात है कि फील होती है हर चीज़ की। अच्छा, और वालिद और वालदा तो प्यार करते होंगे बहुत ज़्यादा? वालिदा के साथ तो बहुत प्यार था भाई का। हाँ। उनको भी तकरीबन 9 माह हो गए हैं फोत। अच्छा, 9 माह पहले वालदा फोत हुई 9 है? माह पहले वालदा फोत हो गई हैं, तो काफ़ी प्यार था भाई का वालदा के साथ, सबके साथ ही था, वालदा का और भाई का काफ़ी था। काफ़ी ज़्यादा था। तो बस आते थे, बैठते थे, गपशप लगाते थे, हंसा मजाक करते थे। वालिदा भी फोत हो गई हैं, उसके बाद ये हादसा भाई के साथ हो गया। ये हो गया। तो ये जो आपके साथ बैठे हैं ये ये आपके हमारे चाचा जी। चाचा हैं? चाचा जी बताएं जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जनाब मैं तो यही कहना चाहांगा कि साढ़े नाल बहुत बड़ी जास्ती हुई है, होना नहीं सी चाहिए। इन्ने क पैसों के तनादे की खातर साढ़े बच्चे नूं ना मार छड़िया।
ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। लेकिन भाई दस रहे ने कि पुलिस बड़ी मदद कर रही है तो ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਕੀਤਾ ਜੀ। वरना अमूमन पुलिस ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸਾ ਸ਼ੁਐਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਛੋਟਾ ਖਿਡਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਉੱਧਰ ਤੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ ਔਰ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਸ ਜੀ ਰਸਤੇ ਜਿਗਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟਗੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾ ਕੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਇਸ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਸਾਡੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭਾਈ ਲੈਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਚੂ ਜੀ ਆਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਝਗੜਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਨਾਇਸ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। हाँ। ਜੀ ये था जी वो हाँ। मकतूल का ख़ानदान जो 1000 रुपये की खातिर उसको कत्ल किया और कत्ल करने के बाद जब मुलजिम ने वहाँ से फ़रार होने की कोशिश की तो वहाँ पे मौजूद जो पुलिस एहलकार थे उन्होंने असले समेत ही उसे वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया। दीगर ख़ानदान के लोग इसके बारे में क्या कहते हैं ये भी उनकी ज़बानी सुन लीजिए। मकतूल शुएब की बड़ी बहन है हमारे साथ। ज़ाहिर है भाई जो होते हैं वो सहारा होते हैं बहनों का, तो बहन क्या फील करती है, क्या सोचती है, ये उनसे जानते हैं। बाजी की होया तानू पता चलिया कि भाई कैसा सी? भाई मेरे भाई बहुत अच्छे सन। मैं अपने माँ बाप के कोल रहनी है, मेरे 5 बच्चे ने, मेरा जो भी खर्चा सी मेरा भाई कर रहे सन। अच्छा। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਖਿਲਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋਏਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੂਬੀਆਂ ਸਨ? ਭਾਈ ਖੂਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ 'ਚ ਹੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਨੇ ਮਗਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ। इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा क्योंकि वो फड़िया गया, जिन्हें मारिया सी वो जी। फड़िया गया। ਬਸ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ।
थाना लोहारी की हदूद में जो एक नौजवान का कत्ल होता है, उसकी वजूहात लवाहकीन ने भी बताई। उन्होंने भी बताया कि सिर्फ 1000 रुपया मकतूल से ये मांग रहा था और ना देने पे अगले रोज़ मसल्ला होके आता है और गोलियां मार के मकतूल को कत्ल कर देता है। अब तक की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? मुलजिम जो है वो गिरफ़्तार हो चुका है और इसके साथ कोई और भी शरीक जुर्म है। पुलिस यकीनन इस पे इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लोहारी वो भी हमारे साथ हैं और इस केस के जो आईओ हैं वो भी हमारे साथ हैं। इनसे तफसील जानते हैं कि ये मुकदमा, ये केस कब तक और कहाँ तक पहुँचा है। अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अली साहब, ये बताइएगा कि ये वाक़या है क्या? 1000 रुपये के लिए जो है वो एक कीमती जान इस मुलजिम ने ले ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ये था कि आमिर शहजाद जो मुलजिम है हमारा 302/380/24 FIR, उसमें ये हुआ था कि ये मुस्तकीम नाम के एक बंदे के पास काम करता था, शुएब मकतूल। इनसे इन्होंने पैसे वगैरह लेने थे मुलजिम ने, आमिर ने। ठीक है। एक रोज़ कबल ये वहाँ पे गया है कारखाने के और उसने पैसों का तकाजा किया है। ठीक है। आमिर शहजाद से 1000 रुपये का। ठीक है। वहाँ पे इनका बहस मुबाहस हुआ और तकरार वगैरह हुई है, जिसकी रंजिश थी इसको, ठीक है, मुलजिम आमिर शहजाद को। ठीक है। ये फिर उससे नेक्स्ट डे गया है वेपन्स वगैरह लेके उसी जगह पे, ठीक है, शीशा मोती बाज़ार अंदरून लोहारी गेट पे। ठीक है। वहाँ पे पहुँचने के बाद इसने शुएब सलीम को कहा है कि आपने मुझे कल इंसल्ट की थी और वही इसको रंजिश थी। इसने अपना वेपन्स जो कि नाजायज़ था 30 बोर पिस्टल निकाला है। निकालने के बाद इसने उसको फायर किए हैं। पहला जो फायर था वो उसके सीने पे लगा है, दूसरा फायर उसको पेट के ऊपर। 3 फायर किए हैं, 2 फायर उसके जिस्म पे लगे हैं और 1 फायर वो मिस हुआ है। ठीक है। जब 15 की कॉल हुई है, ये वकूआ हुआ है 4:30 बजे के करीब, 22 फरवरी 4:30 बजे की 15 की कॉल थी। मैं और अपनी टीम के हमरा हम जाए वकूआ पर पहुंचने के बाद पूरा जो जाए वकूआ था उसको कार्डन किया। कार्डन करने के बाद जो भी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन हमारा यूनिट है, PFSA की टीम, उनको कॉल की, सीनियर अफसरान को बताया गया इस वकूए की बाबत। और जैसे जैसे फिर अफसरान थे वो जाए वकूआ को उन्होंने विज़िट किया। विज़िट करने के बाद हमने जाए वकूआ को कार्डन करने के बाद वहाँ से 3 अदद खोल इकट्ठे किए। फिर हमने खून आलूद जो रुई थी उसके कॉटन्स वगैरह जो भी हमारी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जाए वकूआ की, वो हमने कंप्लीट की। ठीक है। उसमें ये था कि उस वक्त तो हमें नहीं था पता कि ये आमिर शहजाद ने इसको कत्ल किया है। हमने गिरदो नवाज से भी पता किया कि इसको कौन फायर मार के चला गया, लेकिन वहाँ पे वो बाज़ार वगैरह फायर लगने की वजह से दुकानें बंद हो चुकी थी, लिहाजा कोई भी इस मुलजिम को जानता नहीं था। ठीक है। ये अंधा कत्ल था हमारे लिए और एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिस पे हमारे DIG साहब इन्वेस्टिगेशंस ने हमें हदायत दी और SSP इन्वेस्टिगेशन और SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में और हमारी टीम तश्कील दी गई जिसको हमने लीड किया। उसमें यह था कि हमने CCTV कैमरों पे फिर हमने फोकस किया। ठीक। CCTV कैमरों में हमने दुकान के बाहर जो भी कैमरे थे हमने उनको चेक किया। उसमें हमें मुलज़म फायर मारता हुआ नज़र आया वहाँ पे जाए वकूआ पर। उसके बाद जैसे उसकी मूविंग पोजीशन थी, फिर हमने उस रूट को इख्तियार किया। उस पर जो भी CCTV कैमरे लगे थे उनको चेक करने के बाद हमने वो गिरदोनवा के जो दुकानदार थे उनको दिखाई। उन्होंने मुलज़म की निशानदेही की कि ये मुलज़म ये हो सकता है। फिर हमने रात के तकरीबन 9 बजे हमने ये चीज़ें कलेक्ट की, एविडेंस सारे तश्कील दे के SP साहब के नोटिस में ला के फिर हमने मुलज़म के घर में रेड किया, जो कि मुलज़म घर पे मौजूद था। उसके बाद मुलज़म ने जैसे ही हमने रेड किया, वो मुलज़म हमें पुलिस पार्टी, रेडिंग पार्टी को देखते हुए फ़रार होने की कोशिश की, जिसको हमने मौके पे गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद उससे हमने आला कत्ल जो पिस्टल था वो बरामद किया। ठीक है। अच्छा अली साहब, मुलजिम भी पकड़ा जाता है, यकीनन मार्केट है, वहाँ पे CCTV कैमराज हैं, तो शवाहिद जो हैं उसमें बज़ाहिर बिल्कुल नज़र आता है कि ये फायर मार रहा है मकतूल को, गोलियाँ चला रहा है। जी बिल्कुल, जो हमने CCTV फुटेज देखी हैं उसमें मुलज़म बिल्कुल फायर करता हुआ नज़र आया। ठीक है। और जो इससे आला कत्ल बरामद हुआ है वो इसका अपना था, लाइसेंस था उसका, या कहाँ से इसने लिया? नहीं, वो नाजायज़ असला था और इसने वो रखा हुआ था काफ़ी अर्सा। पिस्टल भी जो वो पुराना था का था।
ठीक है। इसी वजह से वो तीसरा जो अपना फायर था वो मिस हो गया। अगर वो मिस ना होता तो वो डेफिनेटली वो भी मकतूल को ही लगना था। ठीक है। दो फायर अपना मकतूल को लगे थे, एक सीने पे और एक पेट पे। ठीक है अली साहब, इसका क्या है, मुलजिम का रिकॉर्ड क्या कहता है? ये कोई आदी मुजरिम है या इससे पहले भी इस तरह की वारदातें कर चुका है? इसका रिकॉर्ड क्या कहता है? और वाकई ये भी उसके साथ ही कोई काम काज मेहनत मजदूरी करता था? ये अपना जूतियों का कारखाने टाइप का अपना ये मेहनत मजदूरी करता है और आइस वगैरह के नशा वगैरह करता है। ये नशे की वजह से इसने ये सारा काम, यकीनन जो रकम का वो मुतालबा कर रहा है 1000 रुपया, वो नशे की उसने लेना होगा। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जो एविडेंस हैं, जो आपके पास शवाहिद जमा हुए हैं, इसको वो करार वाकई सज़ा मिल सकेगी और जो मकतूल के लवाकिन हैं उनको इंसाफ फराहम हो सकेगा? जी बिल्कुल जी। उसमें ये है कि हमने जो 3 अदद खोल लिए हैं वो हम PFSA में जमा करवा चुके हैं और जाए वकूबा से जो हमने खून आलूद अपना सैंपल्स लिए हैं वो PFSA की टीम ने वहाँ पे विज़िट किया। उन्होंने भी DNA के स्वैब्स वगैरह इकट्ठे किए हैं, वो भी हम अपना सबमिट टू PFSA करवा चुके हैं। तो इंशाल्लाह हम अपना पूरी हमारी कोशिश जदीद तरीके से हम इसको अपना प्रोसिक्यूशन से रब्ता करके उनको अपना गाइडलाइंस लेके इंशाल्लाह हम उसको करार वाकई सज़ा दिलवाएंगे। अच्छा, जो मकतूल था वो किस तरह का था? उसका किरदार जो था वो कैसा है? उसके लवाकिन वो भी घरों में जो उसके हमने देखा है वो गरीब लोग हैं? जी, वो वाकई बिल्कुल गरीब हैं। वो यहाँ पे मेहनत मजदूरी करता था, तो इन आपस में एक कारखाना था, वहाँ पे ये काम करते थे पहले, वहीं पे इनकी दोस्ती थी। तो वहाँ पे इनका पैसों का अपना लेन देन था। उसी पैसों से 7-8 माह पहले ये छोड़ के आ चुका था, फिर ये अलग-अलग हो गए थे। ठीक है। अच्छा अली साहब, इसके आईओ हैं जो हमारे साथ, गुलाम फरीद साहब, इनको ज़रा माइक दीजिएगा। गुलाम फरीद साहब, आपने इंटेरोगेट किया है मुलजिम को, तो मुलजिम क्या बताता है? कोई उसको नदामत है कि एक शख्स की उसने जान ले ली सिर्फ 1000 रुपये की खातिर? मुलजिम की मैंने तफ्तीश की है। मुलजिम सर सैको आदमी है, ठीक है, ते क्रिमिनल बंदा है। हाँ। बिल्कुल ये एडा कोई अच्छा नहीं बंदा, ते 2 नंबर आदमी है। इन्हें जिहड़ा कतल किया है इन्हें 1000 रुपए लिए किया है। ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ अच्छा फरीद साहब, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਲਵਾਇਕੀਨ ਇਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ 1000 ਇਹ ਖੁਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਤਰਾਫ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ठीक है, कोई लवायकी नहीं, कोई बंदा नहीं ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਇਹਦੇ बीवी बच्चे? नहीं जी, वो बीवी ਇਹਦੇ ਤੋਂ मसलन वो कहते हैं कि नहीं ये सही नहीं आदमी। ठीक है। ये थी जी इन्वेस्टिगेशन अब तक की कि जो मकतूल को कत्ल करने वाला मुलजिम है उससे तमाम चीज़ें, तमाम शवाहिद और आला कत्ल वो भी बरामद कर लिया गया है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने हमें तफसील से बताया कि ये 1000 रुपये की खातिर एक शख्स की जान ले लेता है, 1000 रुपये की खातिर उसको गोलियां मारता है और वहाँ से फ़रार होता है। फिर CCTV कैमरों की मदद से, वहाँ से जो शवाहिद मिलते हैं उसकी मदद से मुलजिम को उसके घर से गिरफ़्तार किया जाता है। मुलजिम वहाँ से भागने की कोशिश भी करता है पुलिस को देखे, लेकिन फिर भी पुलिस इसको जो है गिरफ़्तार करने में कामयाब हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का कहना है कि तमाम शवाहिद की रोशनी में, तमाम गवाहों की रोशनी में इसको यकीनन करार वाकई सज़ा मिलेगी। आपने सुना कि एक बहन जिसके भाई को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया जाता है 1000 रुपये की खातिर। इसी तरह से कुछ पहले भी वाक़यात ऐसे हो चुके हैं कि चावल कम देने पे देवर अपनी भाभी को कत्ल कर देता है। ये वाक़या कैसे था, सबसे पहले ये देखिए। इकतीस दिसंबर को रात को जब हमें कॉल आई है कि जी वो सिस्टर ने बात की है जी, मुझे जो मुनीर है ये सारे मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। ठीक है, चावलों की मुनीर जो लड़ाई है वो कर रहे कौन हैं। है? मुनीर कौन है? ये देवर है। ये नवीद का छोटा भाई है? छोटा भाई है। छोटा भाई है और आपकी बहन का देवर? हाँ देवर है कि ये धमकियाँ दे रहे चावलों की लड़ाई का बताया है।
तो हमने कहा नॉर्मल धमकी क्या दे रहा, क्या मार देगा, नॉर्मल उनके चलो फिर भी हम ना सुबह आएंगे। ठीक है। तो सुबह तकरीबन 10 बजे हम वहाँ पे पहुँचे हैं। मेरे फादर भी मेरे साथ थे, अबू मेरे, और मेरे मामू भी मेरे साथ थे। हम वहाँ पे पहुँचे, हम बाहर ही अभी घर से, तो अंदर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आ रही थी। ठीक है। जब हम अंदर एंटर हुए हैं तो वहाँ पे हमने देखा कि जी ये जो मनीर है ये मेरी सिस्टर को ना मार रहा था, पिस्टल इसके हाथ में था। ठीक है। तो इसने हमें देखते ही जो ना वो फायरिंग की है, 3 फायर उसको लगे मेरी सिस्टर को। ठीक है। उसके बाद हमने इसको पकड़ने की कोशिश की, हम पकड़ने लगे, इसने हमारी तरफ भी पिस्टल कर दिया। ठीक है। एक नुकसान तो हो गया था, मज़ीद तो नहीं कर सकते थे। ठीक है। तो वहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आई क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हमारे सामने ये सब कुछ हो गया था। ठीक है। तो हमने इसको पकड़ने की कोशिश की, उसने हमारी तरफ पिस्टल किया और वो भाग गया हमसे। ठीक है, वहाँ से भाग गया, फरार हो उस वक्त जो है शोहर उसका, उसने बचाने की कोशिश नहीं की, या कोई और लोग भी थे वहाँ पे मौजूद? ये फरहान वगैरह ही था। अच्छा, फरहान। फरहान कौन है? फरहान उसका सुतेला बेटा है। अच्छा, आपकी बहन का जो है वो सुतेला बेटा? सुतेला बेटा है। अच्छा, वो सुतेला बेटा। आपको अब तक पता चल सका है कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन ऐसी हुई है जिसमें सिर्फ चावलों की वजह से एक शख्स की अभी जान तक तो ये बस चावलों का इशू आ रहा है, लेकिन बात कोई अंदर हो रहा है। नहीं, चावल की वजह से लगता है कि कोई किसी को कत्ल कर देता है? नहीं, चावलों की वजह से तो नहीं कोई कर सकता मार। ठीक है। और क्या हो सकता है? झगड़ा किस बात पे हो सकता है? और यही हो सकता है, ये जो जायदाद वगैरह हिस्सा मांगता था, जायदाद का हिस्सा मांगता था। ठीक है। अब आपको इसके बाद एक और वाकया दिखाते हैं कि थाना शादरा की हदूद में एक नौजवान एक फैक्ट्री में काम करता है, और जब वो काम छोड़ देता है तो फैक्ट्री मालिक उसको उसकी घर की दहलीज पे आके गोलियां मार के कत्ल कर देता है। ये वाकया क्या था, ये भी आपको याद करवाते हैं। सर, मेरे भाई को बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल किया गया सर। तो ये मेरा भाई इनके पास जॉब करता था। किन के पास? कौन थे वो? अजमल भट्टी मूवी आर्ट प्रेस वाले। ठीक है। तो 20-25 साल पहले से काम कर रहा था इनके पास। ठीक है। तो 6 माह हो गए काम छोड़ दिया हुआ था। तो जब काम छोड़ दिया था फिर बार बार से ब्लैकमेल कर रहे थे कि वापस आओ वापस आओ। ऊपर से सैलरी भी कम थी। तो सैलरी कम होने की वजह से छोड़ा उसने? जी बिल्कुल ऐसे ही सर। कहीं और पे काम? जी, और काम किया, लेकिन वह वहाँ पे काम करने नहीं देते थे। अच्छा, करने नहीं देते? जी, वहाँ पहुँच जाते थे। 1-2 मरतबा तो ये गन पॉइंट पे भी ले गए थे मेरे भाई को उठा के। अच्छा, तो फिर आपने कोई सर मैं अजमल साहब के पास गया जाके। अच्छा, अजमल कौन है? अजमल भट्टी, जो इसका वालिद है, वो मुलजिम का? मुलजिम का जी। ठीक है। जिसके पास मैं अपने भाई को छोड़ के आया था काम के लिए। बेसिकली ये काम सारा अजमल भट्टी का है। ठीक है। कत्ल करने वाला अजमल भट्टी का बेटा? अजमल भट्टी का बेटा जी। क्या नाम है उसका? मुदस्सर उर्फ जुगनू। मुदस्सर उर्फ जुगनू। जी, अच्छा, फिर आपने शिकायत की? मैंने शिकायत की। मैं शिकायत करने के लिए गया उसके पास, तो अजमल ने बड़ी अजीब से अंदाज में कहा कि यार उसका ये बेटा आ गया। तो उसने कहा ये बदमाश आए हैं। तो मैंने कहा यार मैं तो अपने भाई की बात करने आया हूँ। तो उसने पिस्टल निकाल के इसी जुगनू ने टेबल पर रख दी। अजमल साहब ने कहा यार अभी ये वक्त नहीं है, तुम इसे अपने पास रखो। अच्छा। मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार मेरे सामने आप ये हाल कर रहे हैं, तो मेरे भाई का क्या करते होंगे आप? ठीक है। इसका कोई लेना देना है, कोई मसला है तो मुझे बताएं। बार बार आपका बच्चा आके हमें परेशान करता है, मोहल्ले में कभी गन ले आता है, कभी कुछ मसला करता है, तो हमें परेशान किया जा रहा है। तो यार कोई बात है तो मुझसे करो। तो फिर कहता नहीं यार तुम बस यही कि ये मेरे पास काम पे भेज दो, बस ये सिर्फ मेरे पास काम करेगा, कहीं और काम नहीं कर सकता। उसी दौरान ये मुदस्सर ने कहा कि चलो ठीक है, मेरे बाप अगर इसे पैसे कम देता है ना तो मैं इसे 4,000 एक्स्ट्रा दे दिया करूँगा। कितनी तनख्वाह थी भाई? सर उसकी 16,000 सैलरी थी। 16,000? जी, तो उसने बढ़ा के 20,000 कर दी। वो 4,000 एक्स्ट्रा देगा, वो अजमल नहीं देगा वो। ठीक है। वो कहता मैं दूंगा। ये शाम को जाते हुए कोई मेरा काम था, कोई बर्तन का, डिनर सेट का, तो थोड़ा मेरा काम कर दिया करिए। भाई मेरा फिर शुरू हो गया उसके पास, फिर करता रहा, फिर वही मसला हो गया यही वाला। ऊपर से गालियाँ बहुत निकालता था अजमल, इतनी बदतमीज़ी करता था उसके साथ। तो भाई मैंने फिर काम छोड़ दिया, और फिर पैसे भी टाइम पे देता था। तो वो वापस आ गया, फिर वो पीछे गुंडे भेजने शुरू कर दिए, वापस आओ काम पे, वापस आओ काम पे। तो जब कत्ल से 1 हफ्ता पहले उससे पैगाम दिया, भेजा अपने कज़नों को इधर कि इसको बोलो काम पे आ जाए वरना मैं इसे कत्ल करवा दूंगा। अच्छा। अजमल ने पैगाम दिया। ठीक है। तो जब धमकी मिली फिर
क्यों पुलिस में नहीं गए, रिपोर्ट नहीं करवाई? सर आपको पता है हम इसलिए नहीं गए, हमारे पास कोई सोर्सेज कोई ऐसा मसला नहीं है सर। कोई कौन सुनेगा किसकी, वो 500 लोग हैं, बहुत अमीर हैं, उनके सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। तो ऊपर से ये भी कह देता था अजमल आप चाहे SP DSP जहाँ मर्जी चले जाओ, अच्छा, ये काम मेरे पास करेगा। ठीक है। तो फिर हमने सोचा हम कहाँ जाएं, किसको कहें जाके। तो हमने ये भी सोचा कि शायद ये धमकी है, वैसे ही है। तो सर वो तो बड़ा दीदा दलेरी से इधर आया 4:40 पर, भाई मेरा बैठा हुआ था सर, उसने बैठ के पिस्टल निकाला है, 2 मिनट बात की है, पिस्टल निकाला और सीधी गोली मार दी भाई को। कोई बात नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, बैठा हुआ था घर के भाई? जी 2 मिनट बात की आपस में, लाइट मोड में बात कर रहे थे। लोग कहते हैं, जो देखने वाले कह रहे थे, ये मेरा भतीजा है, ये सामने से गेट खुला हुआ था, बिल्कुल सामने बैठा हुआ था, सीनी लगा रहा था। तो ये बता रहा है कि लाइट मोड में बात कर रहे थे, यहाँ पे इसके बच्चे देख रहे थे, ये छोटी बच्ची देख रही थी, ये खिड़की में पर्दा नहीं लगा हुआ था, तो सामने देख रहे थे अपने, तो उसे देख रहे थे बकायदा। तो बड़ी लाइट मोड से बात कर रहा था। और कितने फायर लगे? सर 1 फायर लगा जी। 1 फायर लगा, तो फिर हॉस्पिटल लेके गए? जी सर हॉस्पिटल ले गए, तो रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। जरा मुदस्सर जुगनू हो गया सर। सर उन्होंने कड़ी तो कड़ी सज़ा देती जाए सर, क्योंकि वो दरिंदा है सर। अगर वो बाहर आ गया तो कई बीवी बच्चों ने प्यो कतल करेगा, कई भरावां ਇਹਦੇ ਭਰਾ खोएगा। सर उन्हें करी तो करी सज़ा दी जाए। मैं अदालती आलिया को अपील करना कि सर उन्हें करी तो करी सज़ा दी जाए सर। तो सर साड़ी आवाज़ को दुनिया न्यूज़ तो बुलंद किया जाए, लोड़ नहीं तो सर। तो सर बस यही अपील है तेरे को, मैं तेरे को इंसाफ चाहना सर। बहुत शुक्रिया सर। इसी तरह का एक और वाकया पेश आता है थाना गुजरपुरा की हदूद में। क्रिकेट खेलने पर, मैदान छोड़ने पर, मामूली सी बात पर बच्चों को लेकर झगड़ा होता है और उसके नतीजे में भी एक बाप को क्रिकेट के मैदान में कत्ल कर दिया जाता है। ये वाकया क्या है, ये भी देख लीजिए। नासिर भट्ट, जिसे गुजरपुरा के इलाके में क्रिकेट खेलने वाले बैट के साथ मार दिया गया, इंतहाई गरीब आदमी था, वाहिद कफील था अपने उस घर का, जिसके 5 बच्चे और एक बेवा इसी घर में रहते हैं। ये वो छोटा सा किचन है जहाँ पर वो खाना बनाते हैं। ये वो 2 कमरों का सिर्फ घर है। ये वो मशीन है जिसे चलाकर मकतूल की बीवी और अब बेवा है, वो अपने बच्चों का बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करती थी। इसी मशीन पर वो लोगों के कपड़े सीती है और अपने बच्चों का पेट पालती है। अब ये नहीं पता कि मुस्तकबिल में वो इसको अपने बच्चों की कफ़ालत कैसे कर पाएगी। ये वो घर है, ये वो कमरा है जहाँ पर नासिर भट्ट अपने बच्चों के साथ रहता था। 2 कमरों का घर है और टॉप फ्लोर है, जहाँ पर गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा होती है और सर्दी भी इंतहाई ज़्यादा होती है। लेकिन ज़ालिमों ने ना ये देखा कि वो सिर्फ़ अपने बच्चों को लड़ाई झगड़े से बचाने के लिए वहाँ पर पहुँचा और उसे बल्ले मारे, उसको बैट मारे और उसकी जान ले। ये सारी तफसील सबसे पहले उन बच्चों से पूछते हैं जो यतीम भी हो चुके हैं, जिनके सर से बाप का साया भी उठ चुका है। बेटा क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, पढ़ते हो आप? जी। कौन सी क्लास में? 8वीं में पढ़ते हो। तो ये कौन है? भाई है। नासिर भट्ट आपके अब्बू थे? जी। बेटा क्या हुआ था, क्रिकेट खेलने गए तो क्या वाकया हुआ? सबसे पहले ये बताओ कि हर संडे को वहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं बाहर? जी। अच्छा बताओ क्या हुआ था? ये हम सुबह सुबह कह रहा था मैं मैच खेलने जाना, पापा कह रहे जाओ मैच खेलने, और ये गया मैच खेलने में फिर मैं भी गया, मैं लेट गया था। मैं गया, अभी खड़े खुड़े हुए हैं, वो बॉल कराने लगा, वो हमारा दोस्त, उसको लग गई है। ठीक है। उसने लग गई, हमने कहा साइड पर, जो पहले भी लगी है, एक दूसरे के बॉल पकड़ते थे, एक दूसरे की तरफ फेंकते थे, फिर हमें वापस दे देते थे। फिर हम खेल कराने लगे, वो आगे आ गया एकदम, उसके कमरे पे लग गई है। उसने ना मारा वो लड़के को, रोने लगा। वो आपका दोस्त था? जी। ठीक है। हमने पूछा क्यों मारा, वो हमें भी मारने लग गया, बड़े थे वो। ठीक है। हमें भी मारने लगा, इसको पता नहीं, वो हम लड़ते लड़ते इसके सिर पे ईंट लग गई, ईंट मारी उसने।
इसके भाई, छोटे भाई के साथ? छोटे भाई के साथ। अच्छा। और मुझे बल्ला भी मारे थे अच्छा। दोस्त को। अच्छा। मारा मुड़ा ये ना रोते रोते घर आ रहा है। मेरी मामा ने बताया, आप मेरे पापा को कहा वो उससे हैदर की लड़ाई हुई है, सिर फाड़ी। पापा ऊपर से भागे भागे हैं, पापा ने बैट पकड़ा है, वो लड़कों को मारा है। वो लड़को मारा है, और एक आदमी बीच आ गया बड़ा सा, वो कहता है 2-5 मिनट में चाइना स्किन खाली कर देंगे। फिर मेरे पापा ने वो ऐसे किया, बल्ला ऐसे खींच गया, बल्ला उसका लग गया, बल्ला मारा पापा को, और मेरे पापा नीचे गिर गए और उसी वक्त उनकी डेथ हो गई? जी। उसी नहीं, उसी वक्त ऐसे नीचे गिरे और पापा कहते ब्लड निकल रहा था? जी। अब पापा कहते अबू बकर को बुलाओ बस। अच्छा। फिर नीचे गिर गए। अच्छा, तो हर संडे को यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं? कितने लोग खेलते हैं क्रिकेट? कितने बच्चे खेलते हैं? ज़्यादा बच्चे, सारे ज़्यादा होते हैं जी। अच्छा, लो बेटा आप बताओ क्या हुआ? आपका सर भी फट गया, आपके पापा को मार भी दिया उन्होंने, क्या हुआ? सुबह फजर की नमाज टाइम मैं उठा हूँ, पापा कहते नमाज पढ़ ले, मैं क्या मस्जिद में पढ़ लूँगा, तो बाहर बैट बॉल भी खेलना है। 7 बज जाते हैं, हम सारे लड़के मैच खेलने जाते हैं, हर त्योहार को खेलते हैं। ट्रैफिक टेप बॉल के साथ खेलते? ठीक है। खेल रहे थे, वो आए हैं 9 बजे। हमने एक मैच जीता, दूसरा लगा था। हाँ, तो वो अभी आए हैं, तो हमने कहा भाई हमारे साथ ना पीछे लगाना, जगह कम है, हमें गेंद भरे, आप भरे हैं, खींच के मारेंगे। गेंद पकड़ते थे, एक दूसरे की तरफ फेंकते थे, कहते थे यहाँ से चले जाओ। हमने कहा भाई ये जगह हमें मिली है, थोड़ी सी हमने खेलना है। कहता नहीं, लड़के ने गेंद कराया, उसको जाके कमर में लग गया, वो मारने लग पर यहाँ किसी। हमने कहा हमको मारा, कहता तू बदमाश है, तो वे भी मारोगे, मारने लग पर यहाँ से मेरा सिर फटा है। मैं घर जा। सर कैसे फटा? ईंट मारी उसने। कहाँ पे? अच्छा, ईंट मार दी उसने, तो ब्लड वगैरह निकली जा रही थी, सारा मुंह खून से भरा था। अच्छा। मामा मेरे ने कहा ना, घर आ गया आपके? नहीं, मैं आधे रास्ते में आया था, मामा मेरी ऊपर से देख रही थी, कह रही थी ना तुम्हारे बेटे की लड़ाई हुई है, उसका सिर फट गया। मैं पापा भागे गया, बल्ला पकड़ा, उनको मारा है। दूसरा लड़का है एक बड़ा सा है, तो वो कहते हैं ना 5 मिनट में चाइना स्किन खाली कर देनी। साथ ही वो बैट खींचने लग पड़ा, साथ ही उसने पापा को बैट मार दी। आज के जुर्म अंजाम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से छोटी छोटी बातों पे और छोटे छोटे वाकयात पर लोगों की जान ली जाती है। इस प्रोग्राम में 1000 रुपये के लिए एक शख्स को कत्ल कर दिया जाता है भरे बाजार में। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस तफ्तीश करती है, तो मामला यही निकलता है कि 1000 रुपया जो वो नशे के लिए एक अपने जानने वाले से, अपने दोस्त से मांगता था, उसको जब नहीं दिया जाता तो वो अगले रोज़ पिस्टल लाकर उस शख्स को, उस नौजवान को कत्ल कर देता है। इसके अलावा भी आपको प्रोग्राम में वो चीज़ें दिखाई जो इंतहाई छोटी और मामूली बातों पे लोगों की जान ले लेते हैं लोग। ये सब कुछ आपको दिखाया आज के इस प्रोग्राम में। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।